Hello students, welcome. Today we are going to start first chapter of class 10 syllabus, that is real numbers. Before we understand what are real number or divisibility of integers, let us try to understand number system. A set of values used to represent different quantities is known as number system. Classification of numbers. First, natural number. All counting numbers are called natural numbers, जिसको हम गिन सकते हैं. Next, whole number. Natural numbers including 0 is called whole number. Next, integers. Collection of natural numbers, 0 and negative of natural numbers. Next, rational number. Numbers of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Next, irrational numbers. Numbers which cannot be expressed in the form p by q. Next, real numbers. All rational numbers and all irrational numbers together form the collection of real numbers. ये सारा चीज़ हम लोग पहले से भी जान रहे थे. In this chapter we will begin with a brief recall of divisibility on integers and will state some important properties of integers, namely Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, and the fundamental theorem of arithmetic, which will be used in the remaining part of this chapter. Euclid's division lemma tells us about divisibility of integers. It is quite easy to state and understand. It states that any positive integer a can be divided by any other positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. This is nothing but the usual long division process. Consider the division of one positive integer by another, say 58 by 9. 58 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 6 जा 54, रिमाइंडर 4 मीन्स 58 इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 4. 58 जो हुआ यहाँ पे ये डिविडेंड हुआ, 9 डिवाइजर हुआ, 6 कोशेंट हुआ एंड 4 जो है वो हमारा रिमाइंडर हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल 27 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3 means 27 equal to 6 into 4 plus 3. Euclid's division lemma. Given positive integers a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a equal to bq plus r, where 0 less than equal r less than b. Here a dividend, b divisor, q quotient and r remainder. Thus dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Lemma. A lemma is a proven statement which is used to prove another statement. Next point, algorithm. An algorithm is a series of well-defined steps which provides a procedure for solving a particular type of problem. Next, Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm is a technique based on Euclid's division lemma that is used to find the SCF of two given positive integers. SCF जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो उसी को यहाँ पे हम लोग को जानना है. Next point, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक पॉइंट्स था ये था. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 135 एंड 225. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि ग्रेटर नंबर इस दोनों में क्या क्या है. तो 225 ग्रेटर है 135 से. अब सिंपल जो हम लोग SCF फाइंड करते हैं, पहले उस तरह फाइंड करेंगे. इसका SCF देखो
135 से डिवाइड हुआ आपका 2 to 5, 1 times 135, remainder 90, means we can write 2 to 5 equal to 135 into 1 plus 90. नेक्स्ट 90 से डिवाइड हम लोग करेंगे 135 को, 90 बन जाए 95, रिमाइंडर ये 30 माइनस 9 4, मीन्स 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. नेक्स्ट 45 से डिवाइड हम लोग करेंगे 90 को, 45 टू जा 90, रिमाइंडर 0, मीन्स 90 इक्वल टू 45 into 2 plus 0. Therefore, SCF of 135 and 225 is equal to 45. सिंपल सा क्वेश्चन था, SCF फाइंड करना था हम लोग को. नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है आपका. 867 and 255. तो सबसे फर्स्ट हम लोग को देखना है कि 867 ग्रेटर देन 255. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 255 867 3 times 765, remainder 102, means 867 by Euclid division algorithm. 867 equal to 255 into 3 plus 102. नेक्स्ट 102 से डिवाइड करना है आपको 255 2 टाइम्स 204, रिमाइंडर 51, मीन्स 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. नेक्स्ट 51 से आपको डिवाइड करना है 102, तो 51 टू जा 102, रिमाइंडर 0, मीन्स 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. Therefore, SCF of 867 and 255 is equal to 51. मतलब ये कि हमको यहाँ पे रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें NCERT. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो देखो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है. लेट a be any positive odd integer and b इक्वल टू 6, क्योंकि a इक्वल टू आपको होता है bq प्लस r, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ क्वेश्चन में 6q है, 6q प्लस 1, तो इसलिए हम लोग b का वैल्यू 6 लिए यहाँ पे. देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन b, मीन्स दैट इज आप बोल सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. अब ये r का वैल्यू आपको पुट करना है इस a इक्वल टू 6q प्लस आर में, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे टोटल 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और लास्ट एक्सरसाइज से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और थर्ड एक्सरसाइज से और इस एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा और जो थर्ड और नेक्स्ट 1.2 है आपको उससे आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा. मतलब आपको हर एक एक्सरसाइज जानना है और ये बहुत इजी टॉपिक है. तो देखिए व्हेन r इक्वल टू 0 a इक्वल टू 6q, when r equal to 1 a equal to 6q plus 1, r equal to 2 a equal to 6q plus 2,
r equal to 3, a equal to 6q plus 3, r equal to 4, a equal to 6q plus 4, r equal to 5, a equal to 6q plus 5. So values of a equal to 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 is not possible as a is odd positive integer. तो इवन नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमको जो पूछ रहे हैं therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसी क्वेश्चन में ये 6q plus 1 है तो यहाँ 4q हो सकता है। इसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर फाइंड करने के लिए दे सकता है कि क्वेश्चन दे देगा कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। और इसी में क्यूब भी दे सकता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो क्यूब वाला में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला अलजेब्रा में तो आपको ध्यान रखना ही है। सबसे फर्स्ट में फार्मूला सबको भी आपको एक स्टार्टिंग में ही सारे फार्मूलाज को एक जगह लिख लेना है और फार्मूला को देखते रहना है हमेशा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आप सब याद कर लीजिएगा। तो इसी में क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और सब डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको बनाओगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो देखिए यहाँ पे क्यूब आपको लाना है और 9 के फॉर्म में लाना है। तो सबसे फर्स्ट में लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 3q plus r एंड r इक्वल टू 0, 1 and 2। r का वैल्यू 0 लो तो when r इक्वल टू 0 a इक्वल टू 3q, when r इक्वल टू 1 a इक्वल टू 3q plus 1 एंड r इक्वल टू 2 a इक्वल टू 3q plus 2। तो क्वेश्चन में क्यूब बोला हुआ है तो आपको तीनों इक्वेशन को क्यूबिंग करना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब, 3q का क्यूब इक्वल टू हो गया 27q क्यूब और 27 को हम लोग 9 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 3 क्यूब, 3q क्यूब दिस इक्वल टू 9m वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2, तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब अभी हम बताए। तो ये हो गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। हमको 9m के फॉर्म में लाना है तो 9 कॉमन ले लिए, तो 9 कॉमन लिए 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 दिस इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। और थर्ड जो था टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो ये हो गया आपका 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। ये इसमें से हम 9 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 और ये हो गया आपका 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ये हमको प्रूव करना था। हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो था आपका, यही दो तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बाकी इसमें एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सबको देख लेना है। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग को यहाँ पे जानना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर।
तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इन सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले हमको जानना है यहाँ पे प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज दैट नंबर which has exactly two factors, that is 1 and the number itself. Example 5, 1 into 5, 7, 1 into 7, 3, 1 into 3. Next, composite number. A composite number is that number which can be factorized into prime numbers. Example 14 equal to 2 into 7, 28 equal to 2 into 2 into 7. The fundamental theorem of arithmetic can be used to find the SCF and LCM of positive integers. SCF LCM हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमको सॉल्व करना है, जो कि हम लोग बहुत पहले क्लास में जूनियर क्लासेस में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। तो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग SCF, फर्स्ट फैक्टराइज द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम्स and express them as the product of powers of primes in ascending order. Next, select the lowest powers of common primes, and third, the product of these primes with lowest powers gives the SCF. Next, working rule for finding LCM. Factorize the given numbers into primes and express them as the product of powers of primes in ascending order. Next, select all prime with highest powers in the above products. And next, the product of these primes with their highest powers gives the LCM. Relationship between SCF and LCM. SCF into LCM equal to product of two positive integers. ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान एक्सरसाइज इसमें रियल नंबर में यही एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए 140 को हम लोग को सिंपल जो आप लोग जानते हैं फैक्टराइज करने, उसको आप कर सकते हैं 2 into से 70 टाइम्स, फिर देखिए आपका 2 से हो गया आपका 35, फिर हो गया 5 से 7, फिर हो गया 7 1 जा, तो ये हो गया आपका 140 इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, ये हो गया आपको 2 स्क्वायर into 5 into 7। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है, यहाँ पे सभी को प्राइम फैक्टर्स में आपको लाना है, सबसे आसान है, एग्ज़ाम में आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हम लोग अभी जानने पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर LCM इंटू SCF। यहाँ पे दो नंबर आपको दिया हुआ है 26 इंटू 91, बोल रहा है उसका SCF फाइंड करो, उसका LCM फाइंड करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कि वो हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का और सेकंड थर्ड फोर्थ बन जाएगा, आपसे नहीं बनेगा तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो उसको पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 एंड 91, तो 26 को हम लोग बोल सकते हैं 2 into 13, आप सिंपल सा इसको फैक्टराइज करोगे 2 से 13 और फिर 13 बन जाए 13। फिर देखिए 91 को बोल सकते हैं 13 into 7, तो LCM ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, LCM में आपका क्या हो गया 2 into 13 into 7, तो ये हो गया आपका 182, ठीक है, या 91 को भी आपको ऐसे ही चेक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया SCF कितना हो गया, SCF इक्वल टू हो गया आपका 13, तो देखो LCM इंटू SCF इक्वल टू 26 इंटू 91, दिस इम्प्लाई या दैट इज आप बोल सकते हो LCM कितना है 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91, तो दैट इज बोल सकते हो LCM इंटू
SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगा वो दोनों सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 का बाकी क्वेश्चन इसी तरह बना लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, would find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, क्या क्या है आपको देखो यहाँ पे 12, 15 एंड 21। सबसे फर्स्ट फैक्टराइज जो करना है आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट देखिए 15, 3 से डिवाइड हुआ 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5। तो 21 देखिए 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 21 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 7। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखिए एलसीएम में हाईएस्ट पावर सभी का आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60, 7 जा 420। एंड एससीएफ देखो सभी में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो एससीएफ इक्वल टू 3। इसी टाइप से इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना क्या है, हमको यहाँ एलसीएम फाइंड करना है। तो required number of minutes is the LCM of 18 and 12। 18 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और 12 इक्वल टू हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3। तो LCM इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 36। Hence, Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। बाकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लोगे, कोई अगर डाउट होगा तो फिर उसको पूछना है।